Hello, my dear aspirants. So, today we are starting our New Year sessions of current affairs of January 1st to 7th. Okay. So, through this slide, we are going to check out all the important national current affairs that are already happened in this week. Okay, so let's start. Actually, there are so many slides. Okay, and the video is going to be a little bit lengthier. Okay, so be with us and start. Okay, so for the CBSE students, it is not important for the job aspirants. Actually, in 1st January, I don't find any interesting news. That's why I added it. CBSE date sheet for 2023 class 10th and 12th revised date sheet was released. Okay, so this is the date sheet for the 10th students and it is beginning from 27th of February, and for the 12th students the exam is beginning for 20th February. Okay, and it is going to over at 5th April for the 12th students, and it is going to over at 21st of March for the 10th student. Okay, so I am not going to discuss anything else in this topic. Okay, let us move in our interesting topic which are really important for the exam point of view. Okay, so January 1st ग्लोबल फैमिली डे 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट होता है? जनवरी 1st में. ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 1st ईच ईयर. ये हर एक साल मनाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबल एमसीक्यू यही बन सकता है कि ग्लोबल फैमिली डे हम कब मनाते हैं? इश्यूड जनवरी 1. ओके, माइंड इट. चलिए, लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट्स हरियाणा वुमेन्स हॉकी. एक्चुअली हरियाणा का जो वुमेन टीम था वो लोग हॉकी U18 टीम में यानी अंडर 18 टीम में खेलो इंडिया यूथ का जो गेम है उन्होंने जीता है. ओके, so when there is a question and asked which state women's hockey team under 18 won the Khelo India Youth Game 2022, your answer will be which state? It's your Haryana. Okay, don't forget these points. Okay, take a paper or pen and just make some notes with me. And you can take any other important things like best goalkeeper in these events and best defender. But the primary question is which state women's hockey team under 18 won the Khelo India Youth Game 2022? And the answer is Haryana. Okay, and next. नेक्स्ट अगेन हॉकी मैंस. पहला वाला जो किया था वो था वुमेन्स का और ये वाला क्या है? मैन का. ओके, मध्य प्रदेश क्लिंच्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 टाइटल. तो जो मेंस में वो कौन से स्टेट का गेम किया है? वो है मध्य प्रदेश. ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, व्हिच स्टेट मेंस हॉकी टीम अंडर 18 ओन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? इट्स योर मध्य प्रदेश. Okay, and another one, the women was the under 18 team who won the hockey award and hockey game. Sorry, I have told hockey award. It was little bit confusing. Okay, it was Haryana. I forgot. चलिए मूव करते हैं. तो देखिए ये वाला जो न्यूज़ है, इसरो आंध्रा यूनिवर्सिटी टू स्टेप अप इक्विपमेंट अलोंग बीच टू प्रेडिक्ट रिप करंट्स. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में मालूम पड़ रहा होगा एक्चुअली क्या होता है. जो बीच का एरिया है वहाँ पे सडनली जो यहाँ पे लहरें होती है समुद्र का वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखाई जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो करंट जनरेट होता है इससे, यानी जो फ्लो का स्पीड रहता है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकते हैं. ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए और लोगों को वार्न करने के लिए और लोकल जो सिटीजन्स होते हैं या लोकल जो पुलिस है उन सबको वार्न करने के लिए कुछ सिस्टम बिठाया जाएगा इसरो एंड आंध्र यूनिवर्सिटी की ओर से. ओके, सो पॉइंट्स क्या है? तो यहाँ पे इसरो एंड NCES एंड आंध्र यूनिवर्सिटी हैव कंडक्टेड रिसर्च एंड सेट अप इक्विपमेंट टू आइडेंटिफाई रिप करंट्स टू वार्न मेरीन्स एंड लोकल पुलिसेस. तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए जो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस पे काम करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. आई हैव added and some other institutions which are really important like National Institution of Oceanography, the full form is NIO, and then National Geographic Research Institute, it's NGRI, and then High Altitude Research Laboratory, it's your HARL. So you also need to know the name of these important institutes. Okay, and there where is the headquarter of ISRO? It's in your Bangalore. कहाँ पे होगा? बेंगलुरु पे इसरो का हेडक्वार्टर. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम.
तो आरबीआई रिलीज फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ रिजर्व बैंक हिस्ट्री 1997 टू 2008, फिफ्थ वॉल्यूम। इसके पहले भी और 4 वॉल्यूम आ चुके हैं। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या होते हैं, वॉल्यूम आरबीआई क्यों रिलीज करते हैं, एक्चुअली वो दर्शाते हैं कि पिछले वाले जो सेशन थे उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका उन लोगों का गोल क्या रहा है, उन लोगों का अचीवमेंट क्या रहा है, और इस फिनेंशियल जो सेशन था उनके दौर में क्या क्या इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है वो सब वहाँ पे डिस्कस्ड रहता है। ओके, तो दिस वॉल्यूम, तो देखिए ये वाला जो फिफ्थ वॉल्यूम है इसमें क्या क्या कवर है, द डेवलपमेंट इन पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस इन मेजर फंक्शनल एरियाज ड्यूरिंग द पीरियड इन व्हिच was marked by two major crises in the global economy। जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, ठीक है, the Asian financial crisis and the global financial crisis, as we know, due to the pandemic, all over there was a big crisis। Okay, so in this situation, how the RBI set their policies, okay, and how they improve their policies with these certain issues and certain problems, to tackle the certain problems, these are discussed in this volume। Okay, so which volume of Reserve Bank history has been released by RBI? It's your fifth volume। Okay, I think you get the point। Okay, let's move into our next point। देखिए क्या बोला है, कोनेरू हम्पी, पिक्चर देख लीजिए पहले, ये है, इन्होंने क्या किया है, ओन सिल्वर एट द वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप। वर्ल्ड का जो चेस चैंपियनशिप होता है ब्लिट्ज चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने किया कि इंडिया के जो फर्स्ट है अभी तक, इन्होंने सिल्वर मेडल गेन किया है। तो ये जो कंपटीशन था इसमें फर्स्ट कौन है, देखिए द वुमेन्स सेक्शन वाज ओन बाय बिबिसारा बलावेवा ऑफ कजाख्स्तान। तो एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, कजाख्स्तान पे ही हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी देखिए, तो ये जो इवेंट हुआ था कहाँ पे हुआ था, कजाख्स्तान पे, ठीक है। और कजाख्स्तान का ही इन्होंने बिबिसारा वल्लभएवा, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज गेन किया है। और कोनेरू हम्पी जो इंडिया से बिलोंग करती है, उन्होंने यहाँ पे सेकंड प्राइज और सिल्वर मेडल गेन किया है। So it is really very important because she is the first one who got this type of medals, okay, in the women's section, okay। So former world rapid championship के हम्पी produced superlative performance to came India's first ever silver medal, first ever बोला जा रहा है, from the world blitz championship that conducted in Almaty, कजाख्स्तान पे हुआ था। तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए, जो यहाँ पे ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुआ था जिसका, वो कहाँ पे हुआ था, कजाख्स्तान, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लगाया है, हु ओन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल फ्रॉम द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, इट्स योर सॉरी इंडिया फर्स्ट एवर, इंडिया का बोला है तो आपका क्या हो जाएगा, कोनेरू। और अगर ऐसा बोला जाए कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से कौन है जो फर्स्ट प्राइज गेन की, इट्स योर बिबिसारा वल्लभ भाई, ओके। और इंडिया में जो सिल्वर गेन किया है, सिल्वर मेडल, she is your कोनेरू हम्पी, ओके। देन द वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन कजाख्स्तान, ओके। सो द टॉपिक इज कवर्ड, लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, आरबीआई का और भी एक न्यूज है, लॉन्च ऑफ उत्कर्ष 2.0 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क। तो एक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो अभी नया जो सेशन चल रहा है, यानी जो आगे वाले दिन आएंगे, तो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, उत्कर्ष 2.0, ठीक है। तो एक्चुअली ये उत्कर्ष 2.0 का विजन क्या है, इसके थ्रू आरबीआई का एम क्या है और गोल क्या है, देखिए। The vision is Utkarsh 2.0 that will guide the Reserve Bank of India over the period 2022 to 25 आर। एक्चुअली इसमें से कुछ एमसीक्यू नहीं बनेगा, बनेगा एक दो बन सकता है शायद। तो देखते हैं, ये तो आपको अवेयरनेस के लिए जानना चाहिए। एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, जो आरबीआई का फंक्शन है उनमें एक्सीलेंस चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन ट्रस्ट ऑफ सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन इन द आरबीआई, आरबीआई का जितना भी इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सिटीजन्स है उनका ट्रस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। एनहेंस रिलीवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द नेशनल ग्लोबल रोल्स, तो ऐसे करके इनका 6 विजन्स है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो उत्कर्ष 2.0 जो है वो किनने लॉन्च किया है, उत्कर्ष 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए आरबीआई का गवर्नर कौन है प्रेजेंट, शशिकांत दास, ओके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023 टू 25, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो क्या है, उत्कर्ष 2.0। देख के टिक लगाना, इस टाइम लगा के मत आ जाना, ठीक है। चलिए, ओके। सो from this topic in our Tripura
आई फाउंड ए क्वेश्चन, ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड यू आर गोइंग टू सी दिस। तो देखिए इस वाले न्यूज़ पे क्या कहा गया है कि जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर अप बाय 12% टू ₹1.49 लाख करोड़। एक्चुअली रिसेंटली हमारा त्रिपुरा पे जो त्रिपुरा कंबाइंड एग्जाम गया था टीपीएससी में, वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू सी इट इन योर नेक्स्ट स्लाइड। तो बोला गया है जीएसटी कलेक्शंस इन दिसंबर अप बाई 15% टू रेस 1.49 लाख। तो जब से जीएसटी लागू किया गया है उसके बार बार हर एक साल में हम देखते क्या कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिलता है कि देखिए ये साल में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके बाद में दूसरे साल में और ज़्यादा होता है। तो अभी इस रिसेंटली देखा गया है कि 15% का रेवेन्यू इंक्रीमेंट देखा है, एंड इट इज़ अ गुड नंबर आई थिंक, ओके। एंड द अमाउंट इज़ 1.40 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसीव, तो यही बात है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में जो क्वेश्चन था वो यहाँ से रिलेटेड है, तो ये सब बात ना ये दोहरा आपको अवेयरनेस के बेस पे जानना चाहिए, ठीक है। द जीएसटी काउंसिल इज जनरल चेयर्ड बाई, तो कौन चेयर करते हैं इसको जीएसटी काउंसिल को, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, ओके। 10 और हमारा अभी फिनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 और आर्टिकल 279A subclause 1 of the modified Indian Constitution was followed in the formation of the GST Council। तो यहाँ पे बोल आपको पूछ सकते कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये जो जीएसटी का बिल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड किया गया है। तो इट्स होगा आपका 2016 का जो 101 यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसी के दौरान इसको ऐड किया गया था, ओके। चलिए तो और अगर इसके रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 279A विद सबक्लॉज 1, ओके। चलिए बाय द इंडियन प्रेसिडेंट ऑन सितंबर, तो यही बोला गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया था सितंबर 12, 2016 को, 60 डेज आफ्टर आर्टिकल 279A बिकम्स इफेक्टिव। जब आर्टिकल 279 इफेक्ट में आ गया था उसके भी 69 बाद को 60 डेज बाद में इसको इफेक्ट में लिया गया था, ओके। चलिए तो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इसके ऊपर। द जीएसटी काउंसिल इज जनरली चेयर्ड बाय होम, इट्स योर फिनेंस मिनिस्टर। और चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, आप क्या बोल सकते हैं कि चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन है, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम पे मैंने देखा है कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है, इट्स योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। द जीएसटी काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट, इट्स योर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड मेगा डायरी। तो डायरी नाम सुन के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि डायरी एक्चुअली क्या है, ये मिल्क रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशन है जो मंडिया पे कर्नाटका पे इसका इनॉग्रेशन किया गया है। एक्चुअली कर्नाटका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो डायरी का प्रोडक्शन है और जो डायरी फार्मर्स है वो बहुत बड़े पैमाने पे है, ठीक है। सो इट्स बिग नंबर। सो द कर्नाटका रीजन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग where the GDP growth is we can say that there is a huge number of effectivity, okay, due to the what dairy products, okay, and the dairy products are participating in the GDP growth, okay, with their full potential, okay. So to improve these and to give another thrust and boost to this dairy production of this particular region, here Union Home Minister Amit Shah inaugurates the mega dairy, ओके, एट मंडिया, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक बात आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, द नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कौन होता है, इट्स NDDB, ओके। तो NDDB का नेक्स्ट ईयर में विजन क्या है, देखिए इनका ये विजन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन विल एस्टेब्लिश ए प्राइमरी डायरी एवरी पंचायत की, हर एक पंचायत पे एक हम डायरी लगाएंगे इन द अपकमिंग 3 years, ओके। तो नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर का इसका लोकेशन क्या है, आनंद। हर एक जब भी हम कोई एक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, कोई क्या रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए, लाइक IRDA है, सेवी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओके। एंड अगर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ONGC, ओके, TACCL, तो आपको ये सब जानना चाहिए कौन से रीजन से और किस बारे में ये सब डील करते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन कब हुआ था, 1965 को, ओके। और नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो फाउंडर थे वो कौन थे, वर्गीस कुरियन, ओके। नेशनल डेवलपमेंट का जो चेयरमैन है अभी वो कौन है, मिनेश शाह, ओके। तो अमित शाह ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है और इसका चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, मिनेश शाह, ओके।
चलिए, तो यहाँ पे जो एमसीक्यू बन सकते थे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है जो एनडीडीबी का, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का, तो वो कहाँ पे है? इट्स योर आनंद, गुजरात। हु इनॉग्रेटेड द मेगा डायरी एट मंडिया, कर्नाटका? इट्स योर अमित शाह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विथ कौस्तुभ चटर्जी बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर किस लिए दिया जाता है? ऐसा नहीं कि ग्रैंड मास्टर शिफूजी हो गया जो बहुत अच्छा छलांग वलांग लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ग्रैंड मास्टर जो अवार्ड होता है, यानी जो टैग दिया जाता है, जो टाइटल दिया जाता है, वो जो एक्सीलेंस होते हैं एकदम, ठीक है, किस सेक्टर पे? चेस में, चेस खेलने में एकदम एक्सीलेंस होते हैं, उनको एक ग्रैंड मास्टर है, हाईएस्ट टाइटल होते हैं चेस का, ठीक है, इनको दिया जाता है। तो इन्होंने अभी किया क्या है? कौस्तुभ चटर्जी become India's 78th grandmaster. He is India's 78th grandmaster. Okay. So if asked who become the 78th grandmaster, it's your कौस्तुभ चटर्जी. Okay. तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है कि ग्रैंड मास्टर एक्चुअली क्या होता है। ग्रैंड मास्टर इज द हाईएस्ट टाइटल अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियन अवार्डेड टू चेस प्लेयर्स इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE। तो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि चेस का जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसका क्या नाम है? FIDE। क्या? FIDE, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर चेस। ओके, सो ये जो छोटे मोटे बात होते हैं यहाँ पे, वो भी आप अच्छे से नोटिस करके रखिए, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया यार, जो सवाल होता है बहुत आसान सा रहता है, लेकिन हमको याद में नहीं आता और हमें गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, तो बाद में अफसोस हो जाता है कि ये क्यों हो गया, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो पछतावा ना हो इसीलिए देखते रहिए, ठीक है, और जो छोटे मोटे बातें उसको भी नोटिस करते रहिए, ठीक है। हु बिकेम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? इट्स योर कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है, चलिए RBI के बारे में, सॉरी, तो एक्चुअली ये एक अवेयरनेस बेस्ड न्यूज़ है, यहाँ पे आपको कोई MCQ नहीं मिलने वाला है। बोला क्या है देखिए, RBI कीप्स SBI, ICI एंड HDFC एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो RBI ने क्या कहा है, इंडिया के आज की जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो इकोनॉमिक सब्सटीट्यूएंसेस है, उनमें SBI, ICI एंड HDFC का बहुत बड़ा महत्व है। और ये क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा गया है। और रिजर्व बैंक का ये दावा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट्स SBI, ICI बैंक एंड HDFC बैंक रिमेन डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। SIBs आर दोज interconnected entities whose failure can impact the whole of the financial system and create insustainability। तो अगर ये जो तीन बॉडी से यहाँ पे बताया गया है, SBI, ICI एंड HDFC जो बैंक है, अगर इनका धोरा भी ऊपर नीचे होता है ये तीन में से, तो क्या हो सकता है? पूरा जो हमारा फिनेंशियल सिस्टम है उसका स्टेबिलिटी खराब हो सकता है। सो दीज थ्री बैंक्स आर सो मच क्रूशियल फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो इट इज अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन, ओके, टॉपिक, ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। इन एडिशन टू द यूजुअल कैपिटल कन्वर्सेशन बफर, तो बोला किया गया है, तो इनके सिक्योरिटी और टाइट करने के लिए कि आगे जाके इन कंपनी ये जो बैंक्स है इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए और इनकी वजह से जो सिटीजन है उनको कुछ सफ़र ना करना पड़े और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी कोई इम्पैक्ट ना आए, तो इसके लिए बोला गया है इन एडिशन टू द यूजुअल कैपिटल, इनका जो यूजुअल कैपिटल कंजर्वेशन होता है उसको क्या किया जाएगा और इंक्रीज किया जाएगा। DSBs विल नीड टू मेंटेन एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1, तो और कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स जो और एक्स्ट्रा कुछ कैपिटल होगा जो इनको कंजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कि आगे चल के जो इकोनॉमिक सिचुएशन में कोई भी इंस्टेबिलिटी ना बने इन तीनों के कारण। ओके, चलिए तो देखिए, कॉफी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रोज ऑलमोस्ट 2% टू 4 लाख टन। बोला क्या गया है, इंडिया का जो कॉफ़ी सेक्टर है, जो कॉफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो 2% से इंक्रीज हुआ है और जो नंबर है 4 लाख टन तक इंक्रीज हुआ है। तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से कॉफ़ी, वो कहाँ कहाँ पे करते हैं? जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है वो कौन कौन है? इटली, Germany, Russia are the major export destinations for the Indian coffee. Okay, what is the position of India in terms of production and exportation of coffee in Asia? तो इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है?
ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए एशिया में इंडिया का पोजीशन क्या है जब हम बात करें कि कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स थर्ड, बिकॉज यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है इंडिया एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पढ़ाई करते करते आप लोग भी थोड़ा बहुत कॉफ़ी लेते रहिए, ठीक है, ये दिमाग के लिए अच्छा है। अमित शाह lays the foundation stones of the Central Detective Training Institute in कर्नाटका। तो आपको अगर पूछा जाए कर्नाटका में एक नया सेंट्रल डिटेक्टिव एजेंसी का इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा तो उसका फाउंडेशन स्टोन किन्होंने ले किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इट्स योर अमित शाह। ओके, सो इट्स वन लाइनर शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो देखिए पहले हमने एक प्रोग्राम के बारे में बात किया था, उत्कर्ष 2.0, वो किसने लॉन्च किया था, आरबीआई ने। तो अभी एक और एक प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है, स्मार्ट। ठीक है, ये देखिए स्मार्ट। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या देख लेते हैं, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। ठीक है, तो बोला क्या गया, देखिए प्रोग्राम जो स्मार्ट प्रोग्राम है फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स लॉन्च टू रेगुलेट एंड बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। तो एक्चुअली स्मार्ट एक ऐसा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से जिसके थ्रू बोला जा रहा है कि हम बूस्ट करेंगे जो आयुर्वेदा सेक्टर है उनमें R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम ग्रोथ करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू, और इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव आई थिंक। ओके, द प्रोग्राम स्मार्ट इज रिलेटेड विथ व्हिच sector, it's homeopathy, ayurveda, allopathy or veterinary. You know the answer because you have seen the slot na, so the answer is going to be ayurveda. Okay, so let's move into our next slide. In January 3, 4:1 majority verdict. This is also awareness based question and there is no MCQ from this topic. Okay, actually जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, रात में सब लोग अच्छे से सो के अच्छे से खा पी के सोए थे और सुबह जब उठे तो सुना था क्या कि गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उन्होंने बैन कर दिया क्या 500 और 1000 रुपये का नोट को, किसी किसी को तो हार्ट अटैक आ गया था। तो इस वाले सिनेरियो को लेके PIL दाखिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो देखिए इसमें क्या है, इन 4:1 मेजोरिटी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स नो फ्लॉ इन demonetization process. I am really very sorry. Okay, there is a lack of pronunciation due to eagerness. Okay, तो इसमें क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस का जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलते हैं इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, इट इज़ फुल्ली ओके। ओके, एंड इट इज़ चेक एंड बैलेंस्ड। ओके, ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये बात याद रखिए, एक छोटा सा टिप मैं आपको दे ही देता हूँ कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठता है तो बेंच हर एक बार ऑड नंबर पे रहता है, लाइक इट विल बी मे बी 3 और इट विल बी मे बी 7 और इट विल बी 5। इफ any judges bench is done by 4 or any even number, then the decision may be tie. Okay, so that's why the Supreme Court judges bench will be made with odd numbers. Okay, odd number bench. देखिए DRDO celebrated its 65th फाउंडेशन डे। DRDO ने क्या किया है, इनका 65 जो फाउंडेशन डे है उनको सेलिब्रेट किया है। तो DRDO डे जो फाउंडेशन कब हुआ था, इट्स योर 1958। DRDO एजेंसीज का जो क्या है जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर समीर V काम, ठीक है, कामत। DRDO हेडक्वार्टर कहाँ पे, इट्स न्यू दिल्ली। ओके, DRDO प्रेजेंट एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो पेरेंट एजेंसी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो इस बारे में कुछ MCQ देख लेते हैं। तो पॉसिबल MCQ क्या बन सकता है, DRDO वाज फाउंड इन 1958, अभी हमने पढ़ के आया है। चलिए, और DRDO हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए देखिए वर्ल्ड ब्रेली डे। तो ब्रेली क्या है आप सबको मालूम ही होगा अभी तक, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ब्रेली एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो लोग आंखों से अच्छे से नहीं देख पाते, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एक पेपर रहता है, थिक पेपर, उसके ऊपर आप हाथ लगा के आपने महसूस कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो उभरे उभरे हुए से कुछ निशान बना रहता है, तो आप उसको हाथ लगा के देख के समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली लिखा किया गया है। तो वर्ल्ड ब्रेली डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 4 जनवरी। तो आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए कि ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया गया था, इस सीनियर 4 जनवरी। चलिए, वर्ल्ड ब्रेली डे मार्ट ऑन 4 जनवरी। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए वर्ल्ड ब्रेली डे मार्ट कब हुआ था, इट्स योर 4 जनवरी। ओके, चलिए
The India's unemployment rate rises to 8.30% in December 2022. This is also a awareness-based question, and we are not going to see any kind of MCQ from this topic. So India's unemployment rate वो क्या हुआ है 8.30% तक इंक्रीज हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रोज एज 8.30% इन दिसंबर 2022 द हाईएस्ट इन 16 मंथ। बोला क्या जा रहा है पिछले 16 मंथ से ये जो अभी जो आंकड़ा है वो हाईएस्ट है। ओके, स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो देखिए हाईएस्ट में कौन कौन से हैं। Like in December, there is 37.4% in the northeastern state Haryana, followed by 28.5%, okay, in Rajasthan and 20.8% in your Delhi. Okay, so और एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा जो कोई अगर वोट देना चाहे तो उसका एज क्या होना चाहिए 18 साल। ओके, और अगर हम देखें व्हाट इज़ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर अगर कोई आदमी लेबर बनना चाहता है यानी कोई काम करना चाहता है वर्क फोर्स में अपना योगदान देना चाहता है तो उसका एज क्या होना चाहिए। मैंडेटरी एज इज 16 to 64 ईयर्स। ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 16 to 64 इन द इकोनॉमी करेंटली एम्प्लॉयड और आइदर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वो एज ग्रुप क्या होना चाहिए 16 to 64। ओके, लेट्स मूव। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। तो ये कब इनॉग्रेशन किया गया है और किन्होंने इनॉग्रेशन किया है, इट्स बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है, पिक्चर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए, 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 अवार्ड अनाउंस्ड और उसमें किया गया है कि 27 इंडियंस को ये वाला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और देखिए इसमें अगर पॉसिबल एमसीक्यू क्या हो सकता है कि जो भी इवेंट होगा उसका थीम क्या है। तो जो ये वाला इवेंट है इसका थीम क्या देखिए, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, ये वाला इवेंट आप अच्छे से इसका थीम याद रखिए। ठीक है, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक किसका थीम था, कौन सा वाला इवेंट का, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, क्लीनिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, मे बी इट इज वर्ल्ड एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, सॉरी, एंड एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, इट्स न्यू डायबिटीज डे। ओके, चलिए, तो ये वाला थीम आप अच्छे से देखिए। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस 2023 ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो ऑर्फेन के बच्चे, वर्ल्ड ऑर्फेन डे, इट्स इन योर जनवरी 6। तो आपका आंसर हो जाएगा जनवरी 6। ठीक है, वर्ल्ड में शॉर्ट है ये सभी। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स म्यूजियम इन केरला कैपिटल, क्या बोला गया, वर्ल्ड का फर्स्ट, तो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला टॉपिक कि वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड, इट इन योर केरला। ओके, केरला। तो देखिए केरला का जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, ठीक है, हैज इनॉग्रेटेड द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विथ मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज इन तिरुवनंतपुरम, केरला। ओके, एंड तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, यू शुड ऑल्सो नो दिस। Where is the world's first palm leaf manuscript museum is located? It's in your Kerala. Okay, very very important question. And who inaugurated this? It's your Pinarayi Vijayan. Okay, the chief minister of Kerala. Odisha CM Patnaik inaugurates Birsa Munda's hockey stadium. We have discussed a lot of things about Birsa Munda because he is a very very great freedom fighter. Okay, तो उनके नाम पे एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, वो कहाँ पे है, और ओडिशा में, और सीएम जो है पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। व्हेयर इज द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम लोकेटेड, इट्स इन योर ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्पल फास्ट इनकल्शन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट्स इन गोवा। आते आते जनवरी 7 को आ गए एंड द टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट ओवर। ओके, तो देखिए पर्पल फास्ट इनकल्शन फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट्स इन गोवा है, कहाँ पे हुआ है, गोवा पे। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें देखिए, द ईगरली एंटिसिपेटेड पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी द स्टेट्स फर्स्ट एवर इनकल्सिव फेस्टिवल्स फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटीज। देखिए क्या बोला गया है, जो पीपल एक्चुअली डिजेबिलिटीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, विल टेक प्लेस इन गोवा। तो वो उनको मनोरंजन के लिए ये वाला यहाँ पे उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, पर्पल फर्स्ट इनकल्शन फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इनकल्शन फेस्टिवल है इंडिया का, और कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, इट्स इन योर गोवा। तो अब अगर आपको पूछा जाए व्हेयर इज द फर्स्ट इनकल्शन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पर्पल फेस्ट स्टार्टेड, इट्स इन योर गोवा, गोवा पे स्टार्ट हुआ है। ओके, इनकल्शन फेस्टिवल क्या है आप थोड़ा गूगल कीजिए, आपको और अच्छे से मालूम पड़ेगा। ओके, so the video is almost over and now we are going to take our recap session. Okay, so before going through this recap session, if any of you need the PDFs of our daily classes, let us know in our
comment box. We will definitely give you. Actually, recently we have started giving and distributing the PDFs. Okay, so let us know, is there any requirement of PDF? Let us know. Okay, so let's begin. The Global Family Day is celebrated on it's your January 1st. Which states women's hockey, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इट्स योर हरियाणा. Which states men's hockey team under 18 own the खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? इसका क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश. नेक्स्ट चलिए. Which Indian institution is going to set up equipment along beaches to predict rip currents? आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा. Where is the headquarter of ISRO? बेंगलुरु. Which volume of Reserve Bank history has been released by RBI? कौन सा वॉल्यूम है? 5th वॉल्यूम था वो. ठीक है, चलिए. हु ओन इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल? वो कौन है? कनीरू हम्पी. ठीक है, फिर देखिए द वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ है वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप? इट्स इन योर कजाकिस्तान. ओके. उत्कर्ष 2.0 was launched by Shashikanta Das and he is the present RBI governor. The Reserve Bank of India medium term strategy framework, it's your Utkarsh 2.2. ठीक है. The GST Council is generally chaired by the Finance Minister and the chairperson of Niti Aayog is none but our Prime Minister. Okay. The GST Council was formed by the Amendment 101 Amendment Act 2016. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Where is the headquarter of the NDDB? NDDB का headquarter कहाँ पे? Anand, and the Anand is a region of Gujarat. Who inaugurated mega dairy at Mandia, Karnataka? आपका आंसर हो जाएगा अमित शाह. Who became India's 78th Grandmaster? It's your Kaustav Chatterjee. Next, who is the position of India in terms of production and exportation of coffee in Asia? आपका पोजीशन क्या हो जाएगा? इंडिया का 3rd पोजीशन. Who lays the foundation stones of the Central Detective Training Institution in Karnataka? Amit Shah. The program SMART is related with Ayurveda. DRDO was founded on which day? It's your 1958. DRDO headquarters is in New Delhi. Then who inaugurated 108 Science Congress? It's your Narendra Modi. Next, what is the theme of the 17th Pravasi Bharatiya Samman Award? It's your Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. The World Day of War Orphan, it's your January 6. Where is the Birsa Munda Hockey Stadium located? It's in your Odisha. Okay. And then the last one, where is the first Inculsion Festival of India Purple Fest started? It's in your Goa. So we are starting the distributing PDFs as I have mentioned before our recap session. So if you really need this, then let us know in our comment section and please comment and being with us. And I want to say a lot of thanks for being with us and supporting us from the team of Shromis. Thanks a lot, guys.